Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years, we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. Our children are well placed in big hospitals, big industries. They cracked JEE mains, advanced as well as NEET. So this was possible because children had been really very disciplined, very obedient. They attended all the classes, that is all the physical classes, gave all the tests, they attended all the live classes. So that's how the result comes up. So daily you need to work towards your goal. So success is a journey and you have to be focused towards your goal. Like for NEET aspirants, I would like to say that place the picture of that medical college where you see yourself. That is, either you have to enter in that college or nowhere else. So you have to be very clear about your destiny, either this or nothing else. Similarly, JEE students, those who have to crack JEE mains and advanced, you need to place the picture of your dream, that is of your dream engineering college in your room, which IIT you want to enter in. So unless and until you have got a well defined, well focused dream, it becomes difficult to achieve it. So nothing is impossible, everything is possible. You need to daily practice things, implement things, use the concept, solve plenty of questions. Lot of questions should be there in your mind for all the subjects. So we were discussing about isomerism, what type of questions are asked in NEET and JEE. So isomerism mein we had done geometrical isomerism, but certain cases and some types of the questions are still remaining. We will discuss about those. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने देखा कि ये वो आइसोमेरिज्म है जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है. इट्स जस्ट अबाउट द रोटेशन या चेंज इन द स्पेस. दैट इज़ हाउ यू फाइंड इन द स्टीरियो केसेस. Geometrical isomerism is another part where you will find double bonded compounds are there which show this geometrical isomerism. Many other compounds are there in which there will be breaking up of the bond and they will show which type of isomerism, geometrical isomerism. So cis trans हमने देखा, EZ हमने देखा, syn and anti देखा. तो geometrical isomerism we have already done in auxils, we have done in imines also. अब हमको देखना है geometrical isomerism हाइड्रोजीन वाले केसेस में कैसे होता है एंड डाईएजो में कैसे होता है. जल्दी से हम ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख लेते हैं, देन वी विल गो अहेड विद मेकिंग द आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड. तो जैसे हमको हाइड्रोजीन का देखना है, सो सपोज इट इज़ आर डैश ओ, इट इज़ सम कीटोन. कीटोन को हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट होना है और एक हाइड्राजोन बनेगा. ये रिएक्शन आपने अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में किया है. यहाँ से वाटर निकल गया है, आर एंड आर डैश, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड N एंड NH2. इसके साथ ये जो हाइड्राजोन बना है, सेकेंड कैटेगरी ऑफ हाइड्राजोन बनेगा इसमें, जिसमें दोनों की पोजीशंस सेम हो जाएंगी, डबल बॉन्ड N NH2. तो ये क्या हो गया, ये सिन और दिस वन इज़ एंटी एंड ये हो गया सिन. सिन किससे सिमिलर है, सिस से सिमिलर है. एंटी किससे सिमिलर है, ट्रांस से सिमिलर है. तो इस तरह से हाइड्रोजीन वाले कंपाउंड से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं. लाइक ये वाला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड. आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कंपाउंड है जो दो तरह के हाइड्रोजोन्स बनाएगा. दो तरह के हाइड्रोजोन्स का मतलब क्या है, सिन और एंटी. ये चीज़ आपको एकदम याद रखनी है कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो सिन एंड एंटी बनाते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं. ऑक्सिम, हाइड्रोजीन, डाईएजो, इमीन्स, ये सब
सिन एंड एंटी तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। अब इन कंपाउंड्स में अगर हमको पहचानना है कि कौन सा कंपाउंड है जो सिन और एंटी या दो तरह के हाइड्रोजोन्स बनाएगा, तो सीधी सी बात है कि C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के पास अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो वो सिन और एंटी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है तो ये बनाएगा दो तरह के हाइड्रोजोन। यहाँ पे ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ एक मिथाइल है, यहाँ भी डिफरेंट है तो ये भी बनाएगा दो अलग तरह के हाइड्रोजोन्स। ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसमें ये वाला कार्बन भी सेम है, ये भी सेम है, इसलिए ये हाइड्रोजोन नहीं बनाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। हाइड्रोजोन्स वाले क्वेश्चंस में आप सॉल्व कर सकते हो सिन और एंटी बना के। ऐसे ही आता है डाइएजो। डाइएजो का मतलब क्या होता है, जहाँ पे N डबल बॉन्ड N के ग्रुप्स हैं, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप हो सकता है, मीन्स दिस इज अ डाइएजो ग्रुप। तो जब डाइएजो ग्रुप का हमको देखना है, इसमें एक लोन पेयर भी होगा। सो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से प्रेजेंट है और लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, मीन्स ये कौन सा हो गया, सिन। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन इधर है, इसका एरियल डिस्टेंस बढ़ गया है, यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, तो मतलब ये हो गया एंटी फॉर्म। तो ये सिन एंड ये एंटी। यहीं पे अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, लाइक इधर पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे लोन पेयर है, इधर लोन पेयर है और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है। डाइएजो ग्रुप के साथ फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, मीन्स ये हो गया सिन और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे फिनाइल, फिनाइल एरियल डिस्टेंस बढ़ गया है तो ये हो जाएगा एंटी फॉर्म। तो इस तरह से सिन और एंटी। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिसमें आते हैं ऑक्सिम्स जो हमने लास्ट क्लास में किया था, हाइड्रोजीन अभी किया, डाइएजो अभी किया, इमीन हमने लास्ट क्लास में किया था। सो दैट वे आपको पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैसे डील करना है और किस तरह से इनके आइसोमर्स बनाने हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट हम लेंगे, इनमें से आपको फाइंड आउट करने कौन सा कंपाउंड है जो दो तरह के ऑक्सिम्स बनाता है। तो दो तरह के ऑक्सिम्स, अगेन सेम चीज़ आपको देखनी है। अगर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं C डबल बॉन्ड O में, तो वो दो तरह के ऑक्सिम बनाएगा, सिन और एंटी, नहीं तो नहीं बनाएगा। यहाँ पे सिमिलर है, मीन्स ये नहीं बनाएगा। यहाँ भी ये सिमिलर है, ये भी नहीं बनाएगा। यहाँ डिफरेंट है, ये बनाएगा। यहाँ पे डिफरेंट है, ये बनाएगा। इन दोनों में ये सेम है, ये नहीं बनाएगा। इन दोनों में ये डिफरेंट है तो ये बनाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको किस तरह से करने, C डबल बॉन्ड O के साथ दोनों साइड अगर डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो वो दो तरह के ऑक्सिम्स बना सकते हैं, दो तरह के हाइड्रोजोन्स बना सकते हैं। तो इन सब के केसेस आपको सिन और एंटी की फॉर्म में लेने हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है, हमको देखना है C7H8O के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। C7H8O, और वो भी उसमें बेंजीन रिंग को लेते हुए। ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि विद बेंजीन रिंग इंक्लूडेड इन इट, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल विद दिस फॉर्मूला C7H8O विद बेंजीन। जहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो कम हो जाती है, बहुत ही कम, मतलब अराउंड 1 या 1.5 है, मीन्स उसमें बेंजीन रिंग होगा। तो यहाँ पे 7 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, तो रेशो क्या है, 1 से अराउंड 1 है। तो इसलिए इसमें एक्सपेक्टेड क्या है, बेंजीन रिंग इसमें होगी। सबसे पहले बेंजीन का हमारे पास आ गए 6 कार्बन। अब एक हमको चाहिए, यहाँ पे एक कार्बन और चाहिए, एक ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन के साथ या तो ईथर बन सकता है या अल्कोहल बन सकता है। यहाँ पे हो गए C6, ये हो गया 7, H8, यहाँ पे कितने H यहाँ पे कितने हो गए, 4 + 3 7 1 8, मीन्स
एक हो गया ऑर्थोक्रिसॉल। क्रिसॉल से अब रिलेटेड आप आइसोमर्स बना सकते हो यहाँ पे, दैट इज़ मेटा वाला फॉर्म भी आ जाएगा इसमें, और थर्ड आ जाएगा पैरा वाला फॉर्म, दैट इज़ ये OH, ये पैरा। ये 3 फॉर्म्स बन गए। इसके बाद जो फोर्थ फॉर्म है वो बना सकते हो आप एनिसोल ईथर OCH3, इसमें भी फॉर्मूला सेम आएगा। एक आइसोमर इसका और बन जाएगा, दैट इज़ CH2OH। यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है। मीन्स इस फॉर्मूले से आपको कितने आइसोमर्स मिलेंगे? 5 आइसोमर्स मिलेंगे। तो दिस क्वेश्चन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं एंड अब हमको देखना है साइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होती है। साइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखनी है। अब जैसे साइक्लिक कंपाउंड हम लेंगे, ये वाला कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन, इसमें CH3 एंड H, यहाँ पे CH3 एंड H। अब 2 ग्रुप्स सेम साइड में हैं, मीन्स ये क्या हो गया? सिस फॉर्म। और यहीं पे दूसरा आप स्ट्रक्चर बनाओगे जहाँ पे इधर CH3 है, ये H, यहाँ पे ये CH3 है, ये H, मीन्स ये हो गया ट्रांसफॉर्म। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में भी सिस ट्रांस पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब इन क्वेश्चंस के थ्रू हम देखते हैं, इसमें दिया है हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर फॉर डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन आपको बनाना है, इसमें ये स्पेसिफाई नहीं है कि 1,1 डाइमिथाइल है कि 1,2 डाइमिथाइल है, तो हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के आइसोमर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हो गया ये 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, सेकेंड आ जाएगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मतलब यही वाला कंडीशन है यहाँ पे, और थर्ड आ जाएगा 1,2 डाइमिथाइल, लेकिन जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑपोजिट एंड्स में प्रेजेंट है। तो ये बन जाएंगे 3 आइसोमर्स। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं। स्ट्रक्चरल में ज्योमेट्रिकल भी आ जाएगा, सिस ट्रांस भी आ जाएगा, और ये नॉर्मल भी आ जाएगा। मीन्स टोटल आइसोमर्स होंगे 3 आइसोमर्स इसमें हो गए टोटल, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया? सिस ट्रांस पे लिया। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर भी इसमें कितने हो जाएंगे? 3। और इसमें अगर हमको लिखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हुए? 2। सो यू विल से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे इसमें 2। सिर्फ वही केस लोगे जहाँ पे क्या है? सिस ट्रांस की अवेलेबिलिटी है। सो इन दिस वे यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ हैं 1,1 डाइमिथाइल एंड 1,2 डाइमिथाइल, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो स्ट्रक्चरल किस्में 3 हैं, टोटल किस्में 3 हैं, और ज्योमेट्रिकल किस्में कितने हैं? 2। ऐसे ही अगर हमको डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन का देखना है, तो साइक्लोपेंटेन यहाँ पे है, इस केस में डाइमिथाइल मतलब ये हो गया 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, एक ये फॉर्म हो गया। दूसरा आप ले सकते हो यहाँ पे 1,2 डाइमिथाइल, तीसरा आप ले सकते हो 1,3 डाइमिथाइल। ठीक है, 1,3 डाइमिथाइल। मीन्स इस केस में जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे? ये 3। ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल में आ गए। और टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? इसके 2 सिस ट्रांस, इसके 2 सिस ट्रांस, इसका 1। दैट मीन्स
5 इसमें टोटल आइसोमर्स होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 4 इन दोनों के सिस ट्रांस, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी 4। तो ये चीज़ हो गई साइक्लोपेंटेन की। ऐसे ही हमको देखना है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को अगर आप देखोगे तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको हम जल्दी से देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन, एक हो गया 1,1 डाइमेथाइल, एक हो गया 1,2 डाइमेथाइल, एक हो गया 1,3 डाइमेथाइल, एक हो गया 1,4 डाइमेथाइल। ठीक है, तो इसका भी सिस ट्रांस पॉसिबल है, इसका भी सिस ट्रांस पॉसिबल है, इसका भी सिस ट्रांस पॉसिबल है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो ये 4 हो गए, और दूसरा क्या होगा इसमें? टोटल आइसोमर्स। टोटल आइसोमर्स इसके 6 हो गए और इसका 1, मतलब 7 टोटल आइसोमर्स हो गए। ज्योमेट्रिकल कितने हो गए? 6। ये सिर्फ ये 3 हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस ऑन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज टू बी डन। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, बहुत विग्रस प्रैक्टिस करिए ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगे कि ये डिफ़िकल्ट है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। आई वॉन्ट दैट चिल्ड्रन ऑफ दिस अकेडमी शुड बी एबल टू सॉल्व द पेपर। जो 1 घंटा आपको लगना है, you should not take more than 40 minutes to solve the paper of chemistry. It should be that fast and that clear in concepts. So children, like the video, subscribe to the channel, press the bell icon so that we are there with you with more and more different concepts. We will follow the video lectures on isomerism बिकॉज अभी हमको बहुत सारी चीज़ करनी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ तो हमको खेलना है, मतलब इसमें इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। यू विल एंजॉय डूइंग दैट, यू विल लव इट। सो थैंक यू सो मच।